सब मिला के 280 में से 278 सीटों के नतीजे डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इसमें कल सब मिला के लगभग 28 लाख वोट काउंट हुए, 28 लाख वोट काउंट हुए। और जो पार्टी वाइज पोजीशन है, इसमें भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी निकली है 75 सीटों के साथ में 280 में से। इसके बाद है जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस, 70 सीटें हैं उनकी, 67 इंडिपेंडेंस की सीटें हैं, 50 सीटें हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 27 सीटें हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस 26 सीटें उनको मिली हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 12 सीटें मिली हैं, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 8 सीटें मिली हैं, CPIM को 5 सीटें मिली हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को 2 सीटें मिली हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं और फाइनली बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली है। पिछली जो इलेक्शन हुई है पार्लियामेंट की, उसको आप डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर सिंगल डिजिट परसेंटेजेस थी, वहाँ पर ये 20%, 24%, और कश्मीर के जिलों में ही बांडीपुरा वगैरह में 50% से ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया, एक पोलिंग स्टेशन में 84% भी आया, पर वो एक ऐसे नहीं है कि एक में 84% आ गया और बाकी में सिंगल डिजिट है। ओवरऑल कश्मीर की पोलिंग परसेंटेज जो है वो 33.99% है। तो 33.99% वोटर्स का कश्मीर में बाहर आने का मतलब हो गया, हमारे पास लगभग 57 लाख वोटर्स थे, उसका 33% हो जाएगा, वो 15 लाख का समथिंग लाया जाए। तो 15 लाख लोगों का वादी कश्मीर में अपने घरों से बाहर आना और 8 फेज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, और कुछ जिलों में दिस इज बाय इटसेल्फ बिग what shall I say, a message of the people to all of us, that people in Kashmir and of course in Jammu, where the voting percentage has been very high, they want to come and take charge of their own affairs in the democratic context. They are ready, they have shown willingness to participate in the district development council, which are part of the newly made law by the government of India after amending the Jammu and Kashmir ITR Act. And I think we are in the Jammu and Kashmir headed in a good way to set up this new governments at district level in Jammu and Kashmir. That something is happening there. So I think this is something very interesting in the current scheme of things in every society. But that in Jammu and Kashmir, which is so, it's on the north of the country, but we have areas which are very remote. In the sense, there is Poonch Rajouri on the other side, there is Doda Kishwar on the other side, and there is Kashmir Valley areas which could be vulnerable, and sometimes people might not be going there. But your contribution has been big in terms of asking us questions, coming to our press conferences, which we made also more. So it was not that we wanted to see our own self on the TV, but I think by making ourselves available and also dealing with issues that were being raised by the political leaders, providing answers and also making interventions with the law and order machinery for enabling candidates to campaign, for allowing making sure that if some candidate was having difficulty resolving those issues, looking into those issues. The feedback that we are getting also from other side is, by other side I mean we are the statutory body, statutory commission, but candidates are there in the public domain. So it seems that they seem to be satisfied with how they were allowed to do their campaigning and also how they participated in the election as a whole. Having said that, there have been new voters. This election, we had made some special arrangement. उनके बारे में 1 मिनट मेंशन कर देते हैं। इस बार ये गाइडलाइन इशू करी गई, पहली बार ये कहीं स्टेटों में ज़्यादा नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी एक स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ हमारी चर्चा हो रही थी 2-4 दिन पहले। बीच बीच में ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के इंटरेक्शन होते रहते हैं, तो मैंने 2 अटेंड किए हैं जब से मैं बना हूँ स्टेट इलेक्शन कमीशन वेबिनार। तो उसमें ये था कि क्या किसी स्टेट ने कोविड के लोगों के लिए स्पेशल गाइडलाइन इशू करी। तो एक तो कोविड की जनरल प्रिकॉशन है कि उनको सोशल सेपरेशन करनी है, ये मास्क लगाने हैं, बट हमारे जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, हमारे अधिकारियों ने जैसे ही नोटिफिकेशन इशू हुई तो एक गाइडलाइन ड्राफ्ट करी
उसमें ये प्रोविजन रखा गया कि कोविड के लोग घर से वोट कर सकते हैं। और एल्डरली पीपल मोर देन 80 ईयर्स एज, इसकी भी गाइडलाइन इशू हुई, क्योंकि वो गाइडलाइन बड़े तरीके से बनानी पड़ती है। उसमें पोस्टल बैलेट पेपर होगा, उनको एब्सेंटी वोटर माना जाएगा। तो 2 ये गाइडलाइन बनी एल्डरली लोगों के लिए 80 ईयर्स एंड अबव, कोविड वालों के लिए कि वो अस्पताल से अपना वोट डाल सकते हैं, जो अपने घर से वोट डाल सकते हैं। उसके बाद में ये स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए भी कि वो घर से वोट डाल सकते हैं। जिस दिन ये पोलिंग हो रही थी तो हम देख रहे थे कि कितने लोग उसमें उसका प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा लगा कि बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्होंने उसका प्रयोग कम किया, लेकिन वो उनकी अपनी अभिलाषा भी थी कि इलेक्शन में एक फेस्टिवल है तो ये लोग जाना चाहते हैं खुद। तो हमने देखा कि ब्राइड ग्रूम्स, स्पेशली एबल्ड पीपल, एक तो पूरे चारपाई पे थे, उनके घर के साथियों ने उनको चारपाई के ऊपर लाया। वो इमेजेस भी हमें मिलती रही और हमने भी आपके मीडिया के थ्रू वो रिलीज करी। We also felt satisfied that some people like this are coming and participating, and by seeing them और जो बाकी लोग हैं यंग और ओल्ड वो उसको उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अभी कोई दूसरे स्टेट इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन हो रही है तो वो हमारी कोविड की गाइडलाइन लेना चाहते थे, तो हमने भी एज ए गुड प्रैक्टिस तो कल हमने उनके साथ में शेयर करी हैं। और हमें लगता है कि जहाँ तक हमने सारे इलेक्शन कमीशन से सीखा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ओवरआर्चिंग गाइडलाइन रहती हैं उसके अंदर इलेक्शन ये वाली करवाई, हमारी जो कुछ एक्शन यहाँ लिए गए हैं उसका भी प्रयोग दूसरे लोग भी शायद देश में करेंगे, विच इज़ अ मैटर ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर अस ऑल्सो दैट वी हैव बीन ट्राइंग टू कम फॉरवर्ड। आने वाले समय में स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इस बार की इलेक्शन हुई है, पंचायत रोल्स में लोगों के नाम आना, उनको अपग्रेड करना, वो एक्सपीरियंसेस भी हम खुद उनको स्टडी कर रहे हैं। और कमीशन का काम आने वाले समय में डीपन होगा और रोल्स जो हैं पंचायत की, अर्बन लोकल बॉडीज़ की, उसमें और स्टैंडर्डाइजेशन और जो बेस्ट प्रैक्टिस कंट्री की हैं वो उसमें होंगी। हम आपके साथ में एक ये प्रेस रिलीज शेयर करेंगे जिसमें ये वोट्स की इंफॉर्मेशन है, कौन सी पार्टी को कितने मिले हैं, ये आपको अभी मिल जाएगी थोड़े समय में। People, because they are the ones who will be vote. So that we have all seen that people have come out in Jammu and Kashmir. It's a matter of great satisfaction for all of us, for you all who are also part of our society in Jammu and Kashmir. And for that matter, if some of you are from the rest of the country who are based here to cover the news, you are also a very important stakeholder. That's how you are here. So their presence. Secondly, the political parties, the national parties, the parties from Jammu and Kashmir who are registered with the Election Commission of India, whether Jammu and Kashmir after many, many years, and you really expanded in a big way, and the way you are reaching out and bringing the truth out. The person who contests the election has to be a citizen of India. So we got one complaint came to us that one person may not be. We had a report from the Deputy Commissioner. Similarly, there was also a comment on the WhatsApp media about the other candidate. Now, both these candidates, their names were removed by the electoral officer. As we go forward, we will hear these candidates and know what their position is. We will make a final order and then announce. POK is a different set of people. We have taken a very considered decision in the State Election Commission. We had different options. We could have had option of stopping election. We could have had option of declaring that we are countermanding it. So we have not taken that option. We have taken an option that the person would have a possibility to tell the State Election Commission what is the truth about that person. And the person should also be able to take an opportunity of appeal that this is not my status, this is my status, this is the law, this is the other thing. हमने सिर्फ उसको अभी काउंटिंग को रोका हुआ है जी। तो जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें सारा जो कंट्री का लॉ रहा है, इसमें जरूर हो सकता है कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट की या किसी कोर्ट की जजमेंट भी होगी, या इसमें व्यू जो टॉप लॉयर्स हैं कंट्री के उनका व्यू होगा। तो इसके बीच में जो इसकी लीगल बैलेंस्ड वो रहेगी एडवाइस, उसके मुताबिक हम उसको फॉलो करेंगे। I think we have taken a good decision. We have not deprived anybody. The participating candidates जिनके बारे में आप मेंशन कर रहे हैं, अगर जो पूरा इसका कंस्ट्रक्ट है, लॉ में कंस्ट्रक्ट वर्ड को यूज करते हैं, अगर वो उनके फेवर में होगा तो हमारी ये काउंटिंग होगी।
और हम हमारे सामने ये ऑप्शंस ओपन है और हम इसके बारे में फैसला करेंगे विद रेफरेंस टू the position that the government of India has on citizenship matters in respect to the people coming from the who are from Kashmir and the Pak. सर इस चुनाव आपने अच्छे